السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے میرا سارا زنگ اتار دو، مصنفہ ہیں افشاں آفریدی، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 16۔ اف میرے اللہ، آخر کوکنگ اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے کہ بندے کو زندگی عذاب لگنے لگے؟ خودکشی کرنے کا دل چاہنے لگا ہے میرا اب تو۔ نان سٹک دیگچی کا ڈھکن اٹھاتے ہی اس کے دل سے دہائی نکلی۔ ابھی 15 منٹ پہلے ہی تو وہ مما کی ہدایت پر بد دلی سے عمل کر کے پلاؤ کو دم لگانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ پورا گھنٹہ لگا تھا اسے کچن میں لہسن کی بو اپنے کپڑوں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ذرا دیر شاور لینے ہی تو گئی تھی وہ، ادھر پلاؤ کا ملیدہ بن گیا تھا۔ غصے سے ڈھکنا دیگچی پر پٹک کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گیلے بالوں کو دبوچ لیا تھا۔ مائی گاڈ، اب میں کیا کروں؟ مما نے تو جان لے لینی ہے میری۔ اف میرے اللہ، آخر کوکنگ کرنے کی بندے کو ضرورت کیا ہے؟ کیا ہوٹل سے کھانا نہیں آ سکتا؟ کاش ہمارے ملک میں سگڑاپے کی تعریف بدل جائے اور لوگ ہم جیسی معصوم لڑکیوں کو پھوہڑ پن کے تانے بھی نہ دیں۔ دل گرفتہ سی وہ دعا کرنے لگی تھی کہ موبائل کی رنگ ٹون نے متوجہ کر لیا۔ آسمہ بیگم کا نام ڈسپلے پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے بےتابی سے بٹن پریس کیا۔ ہیلو مامی، کیسی ہیں آپ؟ بڑے جوش سے پوچھا تھا اس نے، جس کا جواب عجلت میں دے کر انہوں نے زاویار کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ کل رات سے وہ گھر کا فون ریسیو نہیں کر رہا تھا اور اس کا موبائل فون بھی بند آ رہا تھا۔ وہ سخت فکر مند تھیں۔ او کم آن مامی، وہ ٹھیک ہے، پرسوں بات ہوئی تھی میری اس سے۔ وہ نازیہ آنٹی کی طرف جا رہا تھا۔ ہاں البتہ کل تو مجھے بھی اس کا فون نہیں ملا۔ موصوف اڑے اڑے پھر رہے ہیں آج کل، آزادی جو مل گئی ہے۔ اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے بتایا، مگر وہ پھر بھی مطمئن نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ نازیہ سے پرسوں ملنے کے بعد وہ کل کا پورا دن ان سے بھی آؤٹ آف ٹچ تھا اور یہی بات انہیں فکر مند کر رہی تھی۔ آپ نے نازیہ آنٹی سے پوچھا؟ کل وہ گئی تھیں اس کی طرف؟ اب کہ وہ قدرے سنجیدگی سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے۔ پلیز بیٹا، تم ذرا گھر کا چکر لگاؤ اور مجھے فوراً اطلاع دو۔ ٹیک اٹ ایزی مامی، ریلیکس، میں جاتی ہوں فوراً۔ صاحب بہادر دن چڑھے سو رہے ہوں گے، آپ فکر نہ کریں، میں کان کھینچتی ہوں جا کر اس کے۔ ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کیا اور فوراً ہی زاویار کے نمبر پر کال کی۔ کل کی طرح موبائل آف تھا آج بھی۔ گھر پر بھی بیل ہو رہی تھی مگر ہنوز ریسیو نہیں کیا جا رہا تھا۔ 2 پھر 3 پھر 4 بار اس نے کبھی گھر اور کبھی موبائل پر فون کیا۔ اتوار تھا ورنہ اس کے آفس فون کرتی۔ ابھی کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے کہ میمونہ کچن میں چلی آئیں۔ کس کا فون تھا اور تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ آتے ہی سوال ہوا تھا۔ آسمہ مامی کا تھا۔ وہ اپنے خیال سے نکل کر فوراً بولی تو انہوں نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے مت مامی کہا کرو آسمہ کو۔ کم آن مما، میں شہریار ماموں کے نہیں بلکہ عثمان انکل کے ریفرنس سے مامی کہتی ہوں انہیں۔ ہلکی شرارت کے ساتھ انہیں جواب دیا تو وہ چڑ سی گئیں۔ ہاں ایسے ہی تو تمہارے ماموں لگتے تھے نا وہ، طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں یوں ہی سمجھ لے۔ اچھا فضول مت ہانکا کرو سارا وقت، کچھ سنجیدگی پیدا کرو خود میں۔ اگلے گھر جانا ہے، 10 لوگوں کی باتیں سنواؤ گی مجھے، اب خیال کرو۔ یکدم وہ موڈ بدل کر سنانے لگی تھی اور اس سے پہلے ان کا لیکچر طوالت اختیار کرتا اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے آسمہ کے فون کا جواز گوش گزار کیا تو میمونہ تھم گئیں۔ تم نے فون کیا اسے؟ جی کیا تھا، کل سے کر رہی ہوں مگر موصوف نہ گھر کا فون اٹھا رہے ہیں نہ موبائل پر کال ریسیو ہو رہی ہے، اس لیے میں ذرا آسمہ لاج کی طرف جا رہی ہوں، اس نے بتا کر سوال کیا، پھر یکدم کچھ خیال آنے پر بولی۔ جاؤں؟ بہت خوب، پہلے تو فیصلہ کر لیا اور اب پوچھا جا رہا ہے، وہ قدرے خفگی سے بولی تو وہ بھی جھنجھلا گئی۔ اوکے فائن، نہیں جاتی میں، ایک تو آپ کے بھتیجے کی فکر کرو، اوپر سے باتیں بھی سنو۔ ہاتھ میں پکڑا ہیئر برش میز پر پٹکا تو میمونہ بیگم کچھ نرم پڑ گئیں۔ اچھا زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ مگر جلدی آنا، اور ہاں اس کے لیے کھانا لے کر جانا، کیا پتہ لنچ نہ کیا ہو اس نے۔ پھپھی والی روایتی محبت سے مجبور تھیں وہ، بڑے پیار سے بولیں۔ یوں بھی داماد بننے کے امکانات نے تو اور بھی اہمیت بڑھا دی تھی اس کی۔ نو وے، یہ جو پلاؤ کے نام پر چاولوں کا ملیدہ بنا ہے نا، وہ میں اس کے لیے ہرگز نہیں لے کر جاؤں گی۔ اس نے ڈش اٹھا کر میرے سر پر مار دینی ہے۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس نے کورا سے جواب دے دیا تھا۔ چپ کرو تم، وہ جو کل رات کوفتے بنائے تھے اس کا کافی سارا سالن رکھا ہے، وہ لے جانا، اسے پسند ہے بہت۔ ماشاء اللہ، بھتیجے کی پسند کس قدر یاد ہے، کیا محبت ہے آپ کی اس کے لیے۔ اگر سالن رکھا تھا تو مجھے صبح سے کیوں کچن میں جلایا ہے آپ نے؟ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا کی طرح وہ بولی تو میمونہ نے ڈانٹ دیا۔
बेकार बातें बंद करो, जो कहा है वो करो जाकर। और हाँ, पहले ज़रा बाल ड्राई कर लेना, फिर घर से निकलना। चलो फ़ौरन चलती फिरती नज़र आओ। ज़ावियर से तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, इसलिए ज़रा तमीज़ से पेश आना उससे। व्हाट? ओवर माई डेड बॉडी। मैं मर जाऊंगी मगर उस पागल बिल्ले से शादी कभी नहीं करूंगी। एंड दैट इज़ माई फाइनल डिसीजन। गुस्सा एकदम हावी हुआ था उस पर। पैर पटक कर जवाबन कहा था, कोई परवाह नहीं, आगा जान तुम्हारी डेड बॉडी ज़ावियर के घर भिजवा देंगे। तुम किसी ज़ौम में ना रहना। दूसरी जानिब से बड़ा निपा तुला जवाब आया था। शहरीन ने आंखें पटपटाकर उन्हें देखा और जब सामने खड़ी माँ के चेहरे के तासुरात में कोई तब्दीली नजर न आई तो तिल मिलाकर किचन से निकल आई। टू हेल विद आगा जान और उनके घटिया फैसले। कमरे में आकर कितनी ही चीज़ें उसने उठाकर कारपेट पर पटकी, तब भी गुस्से का ग्राफ नीचे नहीं आया। ये सारा कसूर इस खोला की बच्ची का है। ना वो तारिक भैया के लिए हाँ कहती, ना ये जवी की बला मेरे सर मुंडी जाती। दांत कचकचाते हुए उसने तसव्वुर में खोला को 10 गालियाँ सुनाई और ये शुगल अभी जारी ही रखती अगर बाहर से मैमूना की जानिब से जल्दी करो शहरी की पुकार सुनाई ना दे जाती। ओह शिट, मैंने तो अभी तक बाल ड्राई नहीं किए। चल बेटा शहरी, जल्दी उठ जा, नहीं तो मम्मा ने पकड़कर फिर से किचन में कैद कर देना है। फुर्ती से उठकर उसने हेयर ड्रायर निकाला, खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर हल्का सा मेकअप भी किया। जियो जवी, आज तुम्हारी वजह से कम उस किचन से तो रिहाई मिली। जल्दी जल्दी बाल खुश्क करते हुए वो लाउबालीपन से सोचे गई और फिर खुद अपनी ही सोच पर हंसते हुए बाहर चली आई। मैमूना बेगम ने कोफ्तों के साथ गरम गरम चपातियाँ भी हार्ड केस में रखकर उसकी तरफ बढ़ाईं। साथ में गाजर का हलवा भी था जो सुबह सुबह उन्होंने पापा की फरमाइश पर भूना था। सच में कभी कभी दिल चाहता है कि जवी की तरह मैं भी आपकी भतीजी होती, कितने मज़े होते मेरे भी। सारे लवाजमात देखते ही पट जुबान से निकला था। मैमूना बेगम मुस्कुराहट दबा ना सकी। अच्छा, ज़्यादा फजूल ना बका करो, अब जाओ नहीं तो चपातियाँ ठंडी हो जाएंगी। अच्छा ही है, कम खाएगा वो, देखा नहीं खा खा कर कितना मुस्टंडा होता जा रहा है। 80 किलो से कम वज़न नहीं होगा उसका। माशाल्लाह कहा करो लड़की, खैर से बड़ा ही गबरू जवान निकला है सभी, मैमूना ने टोका था। जी जी, ऐसा ही तो हीरो है वो जल ही गई और इससे पहले कि वो भतीजे की शान में फिर से कोई कसीदा पढ़ती उसने बाहर की तरफ कदम उठाने में ही आफियत जानी। अजीब लड़की है ये, इतनी परवाह करती है जवी की, मगर जहाँ शादी का नाम लो तो उसी जवी में हज़ारों कीड़े निकालने बैठ जाती है। खैर, इससे तो इसके बाबा ही निपटेंगे, मेरा काम समझाना था सो मैंने कर डाला। खुद कलामी करते हुए उन्होंने गहरा सांस भरा और कुछ सोचकर ज़ावियर का नंबर डायल करने लगी, ताहम जवाब उन्हें भी नहीं मिला। घर और सेल दोनों से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। या अल्लाह खैर, मेरा बच्चा जहाँ हो खैरियत से हो। जब से ज़ावियर की फैमिली घर आकर गई थी उसने कज़न खोला से बराह रास्त बात करना छोड़ दिया था। यूँ भी पहले वो कौन सा उससे घंटों बातें किया करती थी, ताहम अब मज़ीद बचने की कोशिश करती। खोला के अपने 10 मसले थे, घर में शादी थी, दूसरे शहरीन के साथ भी काफ़ी वक्त गुजर जाता था उसका। उस शाम भी दुर्रे मखनून ने किचन में पनाह ढूंढ ली थी। ख़ानदान और दोस्तें मिलाकर ठीक ठाक हजूम इकट्ठा कर लिया गया था। यूनिवर्सिटी की आधी लड़कियां गोया मदऊ थी। यही वजह थी कि बाहर किसी को उसकी कमी का गालिबन एहसास भी नहीं हुआ था और शायद होता भी नहीं अगर खोला पानी पीने के लिए वहाँ ना चली आती। अरे दूरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर आओ ना। वो किसी ख्याल में गुम कोल्ड ड्रिंक खोलती असगरी के पास खड़ी थी कि शाने पर खोला के हाथ का नरम दबाव महसूस करके मुड़ी। जी वो मैं बस आने ही वाली थी। कमॉन तुरी, तुम्हारी कज़न की शादी है यार, कुछ तो हिस्सा लो। गालिबन भाभी के ननिहाल की वाहिद नुमाइंदा हो तुम, लिहाजा तुम्हें तो सबके साथ बतौर ख़ास हल्ला गुल्ला करना होगा। चलो मेरे साथ फ़ौरन। खोला ने उसका हाथ पकड़कर इसरार किया तो वो पसो पेश से काम ना ले सकी और चुपचाप बाहर चली आई। यूँ भी वो खोला के साथ तनहा रहना भी नहीं चाहती थी कि कहीं वो ज़ावियर से मुतल्लिक कोई सवाल ही ना पूछ बैठे। बाहर ठीक ठाक रौनक थी। अपनी दोस्तों के साथ बैठी रिदा भी बड़े ज़ोरों शोर से गाने बजाने में हिस्सा ले रही थी। उसके चेहरे पर खुशी और मुसरत के अनगिनत रंग थे। तमानियत का महसूस किया जाने वाला तासुर फरहत और कामरानी की ज़मानत था। दुर्रे मखनून खोला के साथ बाहर आ तो गई, मगर लड़कियों के उस ग्रुप से दूर जहाँ सब ढोल पीट पीट कर गा रही थीं। कदरे फासले पर खड़ी बस रिदा को देख रही थी वो। उसे रिदा के चेहरे की रौनक देखकर बहुत अच्छा लगा था। या अल्लाह, रिदा बाजी को जहाँ भर की खुशियाँ अता फरमाना, आमीन, दिल से दुआ निकली थी। अरे भाई साली आधी घर वाली साहिबा, आप अकेले यहाँ खड़ी हैं। इजहार साहब कब उसके पास आ खड़े हुए उसे पता नहीं चला था। नागवारी का भरपूर अक्स उसके चेहरे पर उतरा था, साथ ही आंखों में कदरे खौफ भी।
भाई कुछ डांस वांस, कोई गाना शाना, कोई ना कोई आइटम तो होना चाहिए ना भाई आपकी तरफ से भी। वैसे भी हुस्न में तो यकता हैं आप। आइटम नंबर अगर आपका होगा तो समझे महफिल में जान पड़ जाएगी। बड़ा बेहुदा मुतालबा था। वही बेतकल्लुफ़ी और वही अंदर तक खुब जाने वाली घटिया नज़रें। दुर्रे मखनून के माथे पर बूंदें चमकने लगी थी। ये नज़रें उसके रोंगटे खड़े कर देती थीं। इस वक्त उसका दिल चाहा वो यहाँ से भागकर किसी महफूज जगह जा छुपे। ज़ावियार के साथ दूसरी मुलाकात ने तो यूं भी औसान खता कर रखे थे उसके। अरे आप तो बुरा बना गई। हमने तो सुना था ख़वातीन अपनी तारीफ़ पर फूले नहीं समाती। किसी की तवज्जो उनकी तरफ नहीं थी। उस पर मस्तजाद शोर शराबा। इजहार साहब उसके नज़दीक खड़े उसके कानों में क्या जहर उंडेल रहे हैं, उनके मुस्कुराते चेहरे से किसी को भी पता नहीं चल सकता था। जबकि दुर्रे मखनून का चेहरा लम्हा बलम्हा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। हालांकि नीचे आने से पहले उसने खुद को बहुत समझाया था कि वो इजहार साहब के सामने किसी कमज़ोरी का इजहार नहीं करेगी, मगर खुद पर उसका इख्तियार इजहार साहब का सामना करने पर अज खुद ख़त्म हो जाया करता। सो आज भी यही हुआ। प्लीज़ मुझे रास्ता दे, मुझे जाना है। ना चाहते हुए भी गले में जैसे आंसू का गोला आ फंसा था। इजहार साहब के लिए ये मंजर हमेशा की तरह बड़ा ही दिलकश था। महजूज होने वाली नज़रों से उसे देखा। अरे जाती तो आप हमेशा रहती हैं साली साहिबा, कभी 2 घड़ी हमारे साथ भी बैठ जाया करें। यकीन कीजिए दुआएं दिया करेंगे आपको। आज तो वो लाउंज के इस कदर तारीख गोशे का फ़ायदा उठाकर कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ गए थे। दुर्रे मखनून ने नहायत नफ़रत और दुख से उनको देखा था। एक तरफ सोफ़ा सेट रखा हुआ था और दूसरी तरफ वो खड़े थे। जाने के लिए रास्ता नहीं था। दुर्रे मखनून की गोया जान पर बन आई थी कि अचानक रिदा की दोस्तों ने गाना मुकम्मल कर खामोशी इख्तियार की तो उसने सारी हिम्मत जमा करके सामने ही रिदा के पास बैठी जोहा को पुकार लिया। खामोशी ज़रा देर के लिए छाई थी। जोहा ने आवाज़ की सिमत मुड़कर देखा तो वो और इजहार साहब उसकी नज़र में आ गए। दूरी वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ आओ ना। जोहा ने उसे पुकारना शुरू कर दिया था, लिहाजा इजहार साहब को शराफत का लिबादा ओढ़ना ही पड़ा आखिर, और उसके लिए रास्ता छोड़ते हुए वो बाहर लॉन की तरफ बढ़ गए। दुर्रे मखनून पर मुश्किल आंसू रोकती जोहा के पास चली आई थी। बहुत सारी लड़कियों में उसके लिए जगह बनाकर जब जोहा ने उसे साथ बिठाया तो वो बदिक्कत तमाम खुद को संभाल सकी। फिर कितनी ही लड़कियों से उसका तारुफ कराते हुए हमेशा की तरह जोहा ने बड़े फ़ख्र से उसके स्कॉलरशिप और पोजीशन होल्डर होने का जिक्र किया था। अरे हमारे ख़ानदान का फ़ख्र है ये। मोहब्बत से जोहा का चेहरा रोशन था। दुर्रे मखनून ने उस लम्हे कितनी ही नज़रें रश्क और हसद के मिले जुले तासुरात के साथ अपनी जानिब उठती देखी। वाह, ये तो बड़ी चार्मिंग है। कहाँ छुपा के रखा था इसे अब तक? किसी ने पूछा। तुम सबको सरप्राइज़ जो देना था। रिदा ने भी हिस्सा लिया था। लानत है रिदा तुम पर। 10 महीने से मैं अपने कज़न के लिए लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर मर गई, मगर तुमने अपने घर में छुपी इस वीनस का पता नहीं बताया मुझे। रिदा की कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त ने धमोका जड़ते हुए उसके कान में खासी बुलंद सरगोशी की तो वो नर्वस होकर नज़र चुरा गई। इसीलिए नहीं बताया था कि तुम अपने लंगूर जैसे कज़न के लिए इस हूर को प्रपोज करने चली आती। रिदा किसी से कम थी। खिलखिलाकर बरजस्ता जवाब दिया था उसने। ओह, तो गोया तुमने उसे अपने कज़न के लिए बचा रखा है। शर्म से डूब मरो, कुछ हमारा ही ख्याल कर लेती। ये लानत मलामत दूसरी सहेली की तरफ से आई थी जिसका इशारा अकरमा की तरफ था। अरे कुछ तो हया करो, तुम लोग मेरी शादी में आई हो या किसी स्वयंवर में? किसी को भाभी चाहिए तो किसी को सैया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रिदा की बेतकल्लुफ़ी और बदजस्तगी से महफिल ज़ाफ़रान हो गई थी। ये मौजू उसकी शख्सियत से हटकर अकरमा की ज़ात के गिर्द घूमने लगा और ऐसे में इत्तफाक ही था कि अचानक अकरमा लाउंज में दाखिल हुआ था। एक दूसरे को टहुका दिए जाने के नतीजे में महफिल पर कदरे खामोशी छा गई थी। दुर्रे मखनून ने सुकून का सांस लिया। इस बेतकल्लुफ़ मजाक और बराह रास्त तारीफ़ व तौसीफ़ से वो खासी नर्वस हो गई थी, मगर यह सुकून उस वक्त रुखसत हो गया जब सबके मतवज्जा होते हुए अकरमा ने उसे यकदम पुकार लिया था। दुर्रे मखनून ज़रा बाहर आइए, कुछ काम है आपसे। सबकी मानी खैज मुश्ताक और शौक नज़रें यकदम उसकी तरफ उठी थीं। उसे लगा उसके जिस्म का सारा खून जैसे उसके चेहरे की तरफ दौड़ पड़ा हो। लड़कियों की मानी खैज मसनूई खांसी और बिला जवाज़ खंकारने से वो कन्फ्यूज सी उठ खड़ी हुई थी। अकरमा ने तायराना सी नज़र उस पर डाली और फिर मुड़कर लॉन की तरफ बढ़ गया था। गोया इत्मीनान था कि वह तकलीद में चली आएगी। मैं जाऊँ? उसने कमीज़ झाड़कर बेख्तियार जोहा की तरफ देखा था। कुछ अंदाज था उसका और कुछ उन सबको हंसने की बीमारी भी थी। एकदम कह कहे छूटे थे। जाओ जाओ हसीना, आखिर को आला हज़रत हुक्म सादिर करके गए हैं। पता नहीं किसने फिक्रा कसा था, वो रोहासी होने लगी। खोला की तरफ नज़र तक ना उठ सकी। अपनी चोंचें बंद करो तुम सब। दादी ने ये वाहियात बातें सुनी तो नाहक डांट पड़ेगी। अकरमा भाई का तो यूँ मामला कहीं और फिट होने को है। रिता ने सबको डपटा।
जोहा ने उसे जाने का इशारा किया तो वो किसी जिंदान से छूटे कैदी की तरह बाहर की तरफ तेज कदमों से बढ़ती चली गई। अच्छा, कौन खुश नसीब है वो, उसने अपने पीछे रिदा के फिक्रे पर कितनों को कहते सुना था, और फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। बाहर लान के पास अकरमा सेल पर किसी से महवे गुफ्तगू मिला तो वह चुपचाप कदरे फासले पर जा खड़ी हुई। अकरमा ने उसे इंतजार करने का इशारा किया तो वह सर हिलाकर इधर उधर देखने लगी। अंदर सारी लड़कियां हल्ले गुल्ले में मसरूफ थीं तो यहाँ बाहर खवातीन और इक्का दुक्का हजरात भी जमा थे। उसने देखा इजहार भाई भी वहीं मौजूद थे। ज़रा देर पहले उनकी ज़ुबान से निकले अल्फाज यकलख्त उसके अंदर जहर घोल गए। नफरत और गुस्सा उसके चेहरे पर जाहिर हुआ तो उसने मुंह फेर लिया। अलविदाई जुमले कहते कहते अकरमा ने सेल बंद करते हुए बेख्याली में उस पर नज़र डाली तो उसके चेहरे पर बहुत कुछ लिखा दिखाई दिया। जी, क्या काम है? उसे फारिग होता देखकर वो नज़दीक चली आई। दादी ने बुलाया है आपको, वो वहाँ लान के आखिरी सिरे पर लगे सोफे पर बैठी हैं। हाथ से इशारा करते हुए उसने बताया तो दुर्रे मखनून की नज़र ने साथ सफ़र किया। लान को कुर्सियों और सोफ़ों से बड़ी खूबसूरती के साथ मुज़य्यन किया गया था। दादी तक जाने के लिए उसे इजहार भाई के पास से गुजर कर जाना था, जिसके लिए वो हरगिज़ तैयार ना थी। अकरमा सामने खड़ा ना होता तो पिछले लान से गुजर कर बाएं जानिब बनी बाउंड्री के ज़रिए, जो कि शिराजी हाउस के सामने वाले लान से मुत्तसिल थी, वो बआसानी दादी तक पहुंच सकती थी। मगर क्या करती? अकरमा उसे यूं शशोपंज में मुब्तला देख कर मतवज्जा हो गया था। क्या हुआ? चाहिए आप? क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ना चाहते हुए भी बेइख्तियार उसके मुंह से निकल गया था। अकरमा ने कदरे हैरत से उसे देखा। दिल तो चाहा इस्तफसार करे कि आखिर उसे डर किससे लग रहा है, मगर हमेशा की तरह कुछ सोचकर चुप हो गया और कदम बढ़ाते हुए बोला, चलिए आइए। इनफैक्ट चची जान की कोई कज़न आपसे मिलना चाह रही थी, इसीलिए बुलाया है दादी ने आपको। साथ चलते हुए उसने बताया, जिसे बेध्यानी से सुनकर उसने सर हिला दिया था। दरहकीकत सारा ध्यान तो उसका इजहार साहब की तरफ था, जो रास्ते में खड़े किसी से महवे गुफ्तगू थे। लिहाजा जो ही वो उनके करीब से गुजरे, दुर्रे मखनून लाशऊरी तौर पर अकरमा के पीछे छुपकर चलने लगी थी। अकरमा ने नोट किया कि जब इजहार साहब के पास से वो दोनों गुजर चुके तो वो उसके अकब से निकलकर उसके पहलू में चलने लगी थी, यहाँ तक कि अकरमा दादी के पास जा रुका। दादी ने उसे देखा तो प्यार से बुलाकर पास बिठा लिया। उनके साथ बैठी खातून ने उसे बगौर देखा था। दुर्रे मखनून नर्वस सी होकर नज़र झुका गई। उसने नोट भी नहीं किया कि अकरमा वहाँ से जा चुका है। वो खातून उसकी मामा की कज़न थी। दादी ने तारुफ करवाया तो वो उनके मध्यम लहजे में किए जाने वाले सवालात की तरफ लामहला मतवज्जा हो गई। दादी की खामोशी के बाइस उसे ही हर सवाल का जवाब देना पड़ा था, और जब समिया आंटी ने उसे खुद से लगाया तो वो इजहार साहब के खौफ को बमुश्किल जहन से झटक सकी। अच्छा बाबा, आती हूँ मैं तुम्हारी तरफ भी। वैसे इस इरादे से निकली नहीं थी मैं। आसमां लाज के दरवाजे पर पहुंचकर उसने कार को ब्रेक लगाते ही कान से लगे सेल के जरिए खोला को जवाब दिया था, जिसके नतीजे में उसे ठीक ठाक सुनने को मिली थी। गलती उसकी थी कि वो रिदा की तरफ जाने वाली कमिटमेंट बिल्कुल भूल गई थी, इसलिए चुपचाप उसकी झाड़ सुनती रही। ओके भाई, कहा तो है कि आ रही हूँ। तुम बस मम्मा को फ़ोन करके बता दो कि मैं यहाँ से सीधी तुम्हारी तरफ आऊँगी, मगर कुछ टाइम लग जाएगा मुझे। पिलाकर उसने ही कथा कलामी करते हुए कहा। तो कहीं जाके खौला का पारा नीचे आया। पता है मुझे, पहले उस करेले को मज़ीद नीम चढ़ाओगी, तब कहीं जाकर फुर्सत मिलेगी। बहरहाल मैं तुम्हें सिर्फ 1.5 घंटा दे रही हूँ, आई समझ, ना 1 मिनट आगे ना पीछे। खौला ने चिढ़कर कहा था। अच्छा बाबा अच्छा, बंद भी करो फ़ोन, मैं गेट के सामने खड़ी हूँ। खाना जवी को थमाकर फ़ौरन ही निकल जाऊँगी, डोंट वरी। उसने तसल्लियाँ में इस लहजे में कहकर फ़ोन बंद किया और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी। बेल बजाकर उसने उचक कर गेट के अंदर झांकने की कोशिश की। जावियर की गाड़ी खड़ी थी, ताहम मेहरान की बाइक उसे वहाँ से गायब नज़र आई। मामी की कार भी अंदर ही पार्क थी। उसने लगातार कई बेलें बजा दीं। 10 मिनट गुजरने के बाद कहीं जाकर अंदर से किसी के बाहर आने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने सुकून का सांस लिया, मगर यह सुकून उस वक्त एकदम रुखसत हो गया जब दरवाज़ा खोलने वाला जावियार के बजाय करख्त चेहरे वाला अजनबी निकला। सलाम जी, लठमार अंदाज था सलाम का। शहरीन बिदक कर पीछे हटी। लहजा और चेहरा दोनों सख्ती लिए हुए थे। कौन हो तुम? वो ठीक ठाक दहशत ज़दा हो गई थी। यह आदमी कुछ देखा हुआ सा लग रहा था, जो अपने हुलिये से कोई देहाती मालूम हो रहा था। यकदम उसके जहन में झमाका सा हुआ। उसे याद आया कि उसने इस शख्स को एक बार शॉपिंग मॉल के रेस्टोरेंट में जावियर के साथ देखा था, और जिसके बारे में जवी ने बताया था कि वो उसका क्लाइंट है। क्लाइंट और जवी के घर पर? उसका दिल किसी खतरे के मनफी ख्याल से धड़क उठा। मैं जी मौला बख्शूँ, जावियर साहब के काम से आया था। करख्त लहजे में अपने सवाल का जवाब मौसूल हुआ था। जवी कहाँ है? आई मीन जावियार।
यकपयक उसकी नज़र उस शख्स के हाथ में पकड़े जावियर के स्पोर्ट बैग पर पड़ी। बैग गालिबन सामान से भरा हुआ था। और तुम ये सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? अब कि उसने अपने लड़से लहजे को काबू करके कदरे रौब से पूछा तो मुकाबिल शख्स ने खासे तंज से उसे देखा। जावियर साहब अस्पताल में पड़ा है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कल रात उसका। मैं ये सामान इसी वास्ते लेने आया था। ये देखो, चाबी अब उनके पास है। इतनी भयानक खबर वो किस मज़े से एक ही सांस में सुना गया था। शहरीन को एक लम्हे के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं आया। सवियर हॉस्पिटल में? माय गॉड, मगर उसने हमें कॉल क्यों नहीं किया? उसका मोबाइल और बाइक सब ख़त्म हो गया, बस ज़िंदगी बच गई है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौला बख्श का हुलिया ही नहीं, उसकी ज़ुबान भी उसे गैर मुकामी आदमी साबित कर रही थी। शहरीन के हाथों से गोया तोते उड़ गए थे। बमुश्किल गुम होते हवास को काबू करके चंद ज़रूरी सवालात उस शख्स से पूछने के बाद वो चारों नाचार उसकी जीप के ताकुब में कार दौड़ाने लगी। दिल डर भी रहा था कि कहीं ये गुंडा मवाली उसे धोखा न दे रहा हो। मगर जब जीप एक प्राइवेट अस्पताल के दरवाजे पर आकर रुकी तो वह धड़कते दिल से कार पार्क करके अंदर चली आई। सभी ठीक तो है ना? उसे ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? खून तो नहीं बहा? उस अजनबी के साथ चलते हुए उसने कई सवाल पूछ डाले थे। ये सब आप खुद देख लो जाकर। उसके पास एक ही जवाब था, यहाँ तक कि वो उसकी तकलीद में आईसीयू तक चली आई। आईसीयू देखकर उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था और जिस वक्त वो आईसीयू में दाखिल हुई उसके कदम जैसे दहलीज पर ही जम गए। सामने ही बेड पर जावियर मुख्तलिफ पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। उसका हाथ फ्रैक्चर था और उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। या अल्लाह, वो बहुत कम हिम्मत थी। खून और ज़ख्म देखने से तो जान जाती थी उसकी। जावियर को इस हाल में देखना बड़ा मुहाल हुआ। चंद सेकंड्स उसे यूं खड़ा देखते रहने के बाद वो बेइख्तियार बेड की तरफ लपक कर आई। सवी उफ, ये क्या हो गया तुम्हें? यकीनन वो दवाओं के ज़ेर असर सो रहा था। शोर ना करो बीबी, ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने कदरे सख्ती से उसे डांटा। मगर इसे हुआ क्या है? ये सो क्यों रहा है अभी तक? शहरीन की पलकें भीगने लगी थीं। दिल किसी खौफ से सहमा जा रहा था। बेहोश हैं ये, कल रात से अभी तक होश नहीं आ सका है और अगले 12 घंटे बहुत अहम हैं इनके लिए। जावियर की कलाई थाम कर नब्ज चेक करती नर्स पेशा वराना बेमुरवती से बोली थी और उन्हें बाहर निकलने का इशारा किया। ओ मेरे खुदा! बाहर आकर वो एकदम रो पड़ी। आईसीयू के आगे का कॉरिडोर खाली पड़ा था। देखें बीबी, रोने की ज़रूरत नहीं, दुआ करें अल्लाह से, वो बड़ा कारसाज है। मौला बख्श खामोशी तोड़कर बोला तो उसने बेइख्तियार नज़र उठाकर उसे देखा। सभी ठीक तो हो जाएगा ना? इस वक्त तो उसके औसान खता थे। मौला बख्श से अगर किसी और वक्त सामना हुआ होता तो शायद वो उसकी तरफ देखती भी नहीं। उसकी खौफनाक मूँछों वाले करख्त चेहरे से खौफजदा हो गई होती। मगर इस मुश्किल घड़ी में वो उसे मोनसो गमगुसार महसूस हो रहा था, इसलिए बेइख्तियार सवाल कर डाला। इंशाअल्लाह मुझे अपने खुदा से बड़ी आस है, वो जावियर साहब को चंगा कर देगा। गरीबों की दुआएं हैं उनके साथ। मजलूमों का निजात दहिंदा है अपना जावियर साहब। उसको किसी न किसी की दुआ ज़रूर लगेगी। मौला बख्श इंतहाई अकीदत और यकीन से जवाबन कहने लगा था। शहरीन ने उसकी बात सुनी तो हैरत से उसे बगौर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? किन गरीबों और किन मजलूमों की बात कर रहे हो तुम? आखिर उनका ज़मीं से क्या ताल्लुक़? अपनी हैरानी को अल्फाज देते हुए उसने गालों पर बहते आंसू साफ किए थे। ताल्लुक़? अरे ये तो हमारा माई बाप है, पर शायद आपको इसने नहीं बताया होगा। बड़ा नेक इंसान है, नेकी की मशहूरी नहीं करता। मौला बख्श ने उसके सवाल पर जवाबन ताज्जुब का इजहार करते हुए खुद ही नतीजा अखज़ करके तौसीफ़ी अंदाज में कहा तो शहरीन सर हिलाकर रह गई। कल रात हम इसको मिलने के वास्ते जा रहा था कि इसके घर के पास वाली सड़क पर हजूम इकट्ठा देखकर रुकना पड़ा। करीब जाने पर मालूम हुआ कि ये तो अपना जावियर साहब है। हम कैसे भी करके इसको अस्पताल लेकर आया, मगर इसका मोबाइल खुदा मालूम कहाँ गिरा के मिला नहीं। मोटरसाइकिल भी ट्रक के नीचे आकर ख़त्म हुआ। वो तो खुदा ने ज़िंदगी बचा दी इसकी, कोई नेकी काम आ गई इसके। अब उनके पास जो भी था दे दिलाकर इसको अस्पताल में जमा कराया, वरना ये जालिम लोग तो हाथ लगाने को तैयार नहीं था। सरफराज साहब भी शहर में नहीं है। अपुन ठहरा गरीब आदमी, मजबूरन उसकी जेब से घर की चाबी लेकर गया और ये सामान लाया। कोई चोरी नहीं किया अपुन ने। आप जाकर खुद चेक कर लेना बीबी, और ये चाबी पकड़ो। तफसील बताते बताते चाबी उसकी जानिब बढ़ाई। उसको फ़िलहाल रखो और मुझे ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या हुआ है जवी को? वो बेताबी से बोली थी। जवाबन मौला बख्श ने उसे तफसील से आगाह किया। उसके सर में शदीद चोट आई थी जिससे काफ़ी खून बह गया था। सीधे बाजू की हड्डी फ्रैक्चर थी और साथ ही जिस्म पर जगह जगह छोटी बड़ी कई तरह की चोटें थीं। फ्रैक्चर और चोटों की तो खैर थी, ताहम सर में लगने वाले ज़ख्म और बह जाने वाले खून के बायस उसकी हालत अभी तक तशवीशनाक थी
और वो खतरे के बाहर नहीं था। तफसील सुनकर वो फिर रो पड़ी थी। फिर हिम्मत करके राउंड पर आए डॉक्टर के पास जाकर कई सवाल किए और उसके तसल्ली देने पर दिल ही दिल में गिड़गिड़ाकर दुआ करती वो बेंच पर आ बैठी थी। मामा को फ़ोन करना खतरनाक था, यूँ भी कई दिन से उनकी शुगर हाई चल रही थी। उधर आगा जान की परेशानी का ख्याल करके उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों को फ़ोन करती। आसमा मामी को भी वो परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसे में सिवाय खोला के कराची में और कौन था जिसे वो इस वक्त पुकारती। प्लीज़ खोला, जल्दी आ जाओ, मैं उसे ऐसे ज़िंदगी हारता नहीं देख सकती। खोला की आवाज़ सुनते ही वो बिखर गई थी। भाभी हमें जाना है, इनफैक्ट जावियर का एक्सीडेंट हो गया है। डिनर सर्व हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि खोला ने दुर्रे मखनून के साथ बैठी ज़ारा के करीब आकर धीमी आवाज़ में बताया तो नवाला दुर्रे मखनून के हाथ से छूटकर प्लेट में जा गिरा। ओह नो, मगर कब हुआ ये सब और कैसे? ज़ारा फिक्रमंदी से बोली। शहरीन बता रही है कल रात बड़ा सवेर एक्सीडेंट हुआ है उसका। बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था कि किसी ट्रक ने हिट किया है उसकी बाइक को। खोला परेशान सी उजलत में तफसील बताकर वहाँ से चल दी तो ज़ारा भी उसकी तकलीफ में बाहर निकल गई। किसी ने साथ बैठी दुर्रे मखनून की तरफ तवज्जो भी नहीं दी, जिसकी सांस जैसे सीने में अटक गई थी। या अल्लाह, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा, मैंने उसे कोई बद्दुआ नहीं दी। उसके वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सानिहा है ये। जावियर अंसारी को ज़िंदगी दे, सेहत दे मेरे मालिक। ऐनी और शहरियार अंकल की सूरतें उसके हाफसे में ताज़ा होकर उसे दुआ पर मजबूर कर गई। आगा जान का ज़ईफ़ चेहरा उसे दुखी करने लगा। वो उठकर ऊपर चली आई थी। इस वक्त जहन बुरी तरह अपसेट हो रहा था। उसे तन्हाई की ज़रूरत थी। कमरे में आकर उसने कानों में पहने हुए आवीज़े जो उसे बतौर ख़ास जोहा ने पहनाए थे और जो उसका वाहिद सिंगार थे, उतार कर रखे और मदद चाहो सब्र और नमाज से वो वज़ू करने चल दी थी। ज़ारा, इजहार भाई और खोला के साथ अकरमा अस्पताल आया था। घर में मेहमान थे, लिहाजा मुजफ्फ़र साहब और सायरा बेगम में से तो कोई आ नहीं सकता था। ताहम अकरमा को साथ कर दिया गया था। उन तीनों को गेट पर उतारकर वो पार्किंग में कार पार्क करके जिस वक्त अंदर आया, रिसेप्शन के पास उसे खोला के कंधे से लगी शहरीन नज़र आई। इजहार साहब गालिबन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की तलाश में चले गए थे। हौसला करो शहरी, वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। खोला का अपना दिल सहमा जा रहा था, मगर उसे मालूम था कि शहरीन किस कदर कम हौसला है। उसकी हिम्मत बंधाने की खातिर अक्सर उसे अपनी ताकत से बढ़कर बहादुर बनना पड़ता था। और अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा खोला? तुम जानती हो ना कि हमारे ख़ानदान के लिए क्या है वो। कुछ नहीं होगा उसे, मैं कह रही हूँ ना, तुम रिलैक्स करो। देखो भाभी भी आई हैं, साथ में अकरमा भी हैं। उसने उसके कान में तनबीही सरगोशी की तो शहरीन ने बदिक्कत तमाम उसके कंधे से सर उठाया। वो दोनों उसी तरफ मतवज्जा थे। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए। अकरमा ने उसे देखा तो जहन में झमाका सा हुआ। इस लड़की को उसने कई दिन हुए जावियर के साथ ही देखा था। रास्ते में खोला और इजहार साहब की ज़ुबानी जावियर का नाम सुनकर उसे कुछ ख्याल तो आया था, मगर एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, ऐसा सोचकर खामोश रहा। मगर इस वक्त सामने खड़ी शहरीन मिर्ज़ा उसके खदशे को सच साबित कर रही थी। तो गोया कल रात दुर्रे मखनून के लबों से इनकार सुनने वाला शख्स जावियर इस वक्त आईसीयू में ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा था और खोला उसकी कज़न थी। उसने कड़ियाँ जोड़ी तो ये सोचकर हैरान हुआ कि अगर ऐसा है तो फिर खोला और इजहार भाई जावियर के प्रपोज़ल के बारे में, हत्ता कि ज़ारा तक इस वाक़ये से अनजान थी। अभी वो चुपचाप खड़ा उन ख़वातीन को शहरीन के आंसू पोंछते और तसल्ली देते देख रहा था कि इजहार साहब बाएं जानिब से कॉरिडोर से आते दिखाई दिए। मेरी बात हुई डॉक्टर से, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कहता है कल के मुकाबले में आज काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है जावियर की पल्स और बीपी में। देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। खोला ने फ़ौरन उसका हाथ थाम कर कहा था। आपने पूछा कब तक होश आ जाएगा उसे? ज़ारा फिक्रमंदी से पूछने लगी। डॉक्टर्स कहते हैं इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, अगले चंद घंटे बहुत क्रूशल हैं उसके लिए। इजहार साहब कदरे परेशान थे मगर जाहिर नहीं कर रहे थे। शहरी, तुमने आसमा आंटी को इन्फॉर्म किया? नहीं, वो कोयटा में हैं और बहुत फ़िक्रमंद हैं। तुम्हें तो पता है उन्हें अंजाइना की तकलीफ़ है। मैंने उनसे कह दिया है कि जभी अपनी किसी दोस्त की वेडिंग की वजह से घर पे नहीं है और उसका सेल पानी में गिर गया है। खोला के सवाल पर उसने जो झूठ खड़ा था कह सुनाया। बिल्कुल ठीक किया, अभी किसी को इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। उसकी बात पर इजहार साहब ने गला साफ़ करके वाज़ेह आवाज़ में कहा तो वो सब उनकी तरफ देखने लगे। इनफैक्ट आगा जान की सेहत और मैमूना आंटी के कमज़ोर दिल के बायस हमें फ़िलहाल उनको भी इस बुरी खबर से दूर रखना चाहिए। इंशाल्लाह कल जब जावियर को होश आ जाएगा तो बता देंगे। उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा तो ताइदन सब खामोश हो गए।
بھابھی آپ میمونہ آنٹی کو فون کر کے کہہ دیں کہ شہرین ہمارے ساتھ شیرازی ولاز میں ہے اور شادی کے باعث میں نے اسے روک لیا ہے، کیونکہ اسے دیکھ کر تو آنٹی کو یقیناً شک ہو جائے گا کہ کچھ ہوا ہے زاویار کے ساتھ۔ خولا نے خیال آنے پر زارا سے کہا تو وہ سر ہلا کر موبائل بیگ سے نکالنے لگی۔ کم آن ریلیکس، آؤ میں تمہیں اکرما سے ملواؤں۔ پریشان اور گمسم کھڑی شہرین کو دیکھ کر خولا نے کہا تو وہ متوجہ ہوئی۔ کچھ دنوں پہلے تک تو اسے بڑا ارمان تھا اکرما سے ملنے کا، مگر جب سے طارق بھیا کا نام خولا کے ساتھ لیا جانے لگا تھا وہ اپنی اس خواہش کو گویا بھول ہی چکی تھی، مگر اس وقت وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ خولا نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ تعارف کے نتیجے میں اکرما نے مروت اور شائستگی سے کہا تو شہرین کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھیں اور اس کا مفصل جائزہ لے کر واپس پلٹ آئیں۔ طارق بھیا کے مقابلے میں کتنا ہینڈسم ہے اکرما شیرازی، مگر پھر بھی خولا اجی بھائی کے فیصلے کو دل سے قبول کرنے کو تیار ہے۔ بے اختیار اس نے اپنے بھائی اور سامنے کھڑے اکرما کا تقابل کیا اور اس موازنے کے نتیجے میں ایمانداری سے سوچنے لگی۔ پھر کئی گھنٹے وہ لوگ وہاں رہے اور رات 11 بجے والی ڈیوٹی پر آئے سرجن سے مثبت رپورٹ ملنے پر گھر واپس چلے آئے۔ اظہار بھائی وہیں رک گئے تھے۔ مولا بخش البتہ ان کے ساتھ اسپتال میں تھا۔ سب کے بہت کہنے پر بھی وہ ہاسپٹل کے ماربل سے بنے ٹھنڈے فرش پر بہت سکون سے بیٹھا رہا اور جانے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر اکرما ان تینوں خواتین کو نیچے چھوڑ کر اوپر چلا آیا۔ گھر میں آئے مہمان جا چکے تھے، صرف ریتا کی چند سہیلیاں اس کے کمرے میں ڈیرا جمائے ہوئے تھیں۔ دادی غالباً اس کے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ کے کنارے پر پیر لٹکائے بیٹھی در مکنون بےتابی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا خبر لائے، کیسا ہے وہ بچہ اب؟ دادی کی تسبیح کے دانوں کو گردش دیتی انگلیاں تھم گئی تھیں۔ در مکنون کے چہرے پر سخت سوال ان کے لبوں سے نکلا تھا۔ بہتر ہے پہلے سے، مگر خطرے سے باہر نہیں۔ بلڈ لاس کافی ہوا ہے اور سر پر بھی گہری چوٹ آئی ہے۔ سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تو بے چینی سے اس کی جانب دیکھتی در مکنون ہونٹ کاٹنے لگی۔ اللہ کرم کرے، صحت دے۔ دادی کے پر نور چہرے پر خلوص کی روشنی بکھر گئی تھی۔ در مکنون نے انہیں دیکھا تو متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ کتنی شفیق ہیں دادی، ہر ایک سے بے غرض محبت کرتی ہیں، ہمدردی رکھتی ہیں، اور ایک میں ہوں، اپنے محسن اور مجرم دونوں کے لیے کسی کام کی نہیں ہوں میں۔ احساس کمتری سے سوچتے ہوئے وہ سست قدموں سے چلتی کمرے سے باہر چلی آئی۔ دل پر منو بوجھ آ گرا تھا جیسے۔ اکرما کی زبانی زاویار کا حال سن کر وہ کچھ اور بھی احساس جرم میں گھر گئی تھی۔ گرم گرم کافی بنا کر جس وقت وہ دادی کے کمرے میں آئی تو اکرما وہاں سے جا چکا تھا۔ جاؤ بیٹا اس کے کمرے میں دے آؤ، وہ ابھی سویا نہیں ہوگا۔ دادی کمبل میں لیٹتے ہوئے بولیں تو وہ اکرما کے کمرے کی جانب چل دی۔ دستک کی آواز پر اکرما نے یس کہا تو وہ اندر چلی آئی۔ وہ اپنے رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ کافی؟ تھینکس، اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ آئی پیڈ ایک طرف رکھتے ہوئے وہ متوجہ ہوا تھا۔ جواباً وہ چاہنے پر بھی مسکرا نہ سکی تھی۔ در مکنون، وہ جانے کو پلٹی تھی کہ اکرما کی آواز نے قدم روک لیے۔ پلٹ کر سواریہ نظریں اس پر تو اکرما نے بغور اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی مڑی ہوئی پلکیں بھیگی اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ روتی رہی ہے۔ کیا آپ مسٹر زاویار کو پہلے سے جانتی ہیں؟ اکرما کا لہجہ قدرے یقین لیے ہوئے تھا۔ در مکنون کو قطعاً حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ خولا کے ساتھ وہاں گیا تھا، اتنا معلوم ہو جانا تو یقینی بات تھی۔ مرے مرے انداز میں سر ہلا کر اس نے گویا اعتراف کیا۔ گہری سانس بھر کر اکرما کرسی کی پشت سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اینی وے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اسے دیکھ کر وہ کیا سمجھا تھا کہ تسلی دینے کے سے انداز میں بولا۔ در مکنون نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اینی اور اس کے آقا جان کے لیے یہ بہت کڑا وقت ہے، مجھے ان سے ہمدردی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے محض جملہ ادا نہیں کیا تھا، کچھ جتایا تھا۔ اکرما نے کافی کا سپ لیتے ہوئے اسے سرسری سا دیکھا اور پھر دوبارہ آئی پیڈ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے معمول کے سے انداز میں یوں بولا جیسے بات ختم کرنا چاہ رہا ہو۔ اچھی بات ہے، آپ کو ہمدردی ہونی بھی چاہیے، آخر کو وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ کی فیملی ہے۔ جملہ مکمل کر کے وہ کچھ اس طرح اپنے کام میں منہمک ہوا کہ در مکنون پرسکون سی ہو کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ حد ہے در مکنون، بھلا اس طرح بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سا کسی نے کوئی دفعہ لگا دی تھی تم پر؟ کسی کو کیا پتا کہ زاویہ انصاری کی طرف تمہارا کتنا حساب نکلتا ہے، اور جس ذات کو پتا ہے وہ باخبر ہے کہ تم نے اسے یہ بد دعا کبھی نہیں دی۔ ٹیرس پر آج بھی چاندنی اپنا فسوں پھیلا رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھاتی ٹیرس پر چلی آئی۔ صبح 7 بجے اظہار صاحب کا فون آیا تو خولا شہرین کے ساتھ ہسپتال چلی گئی تھی۔ زاویار کو ہلکا ہلکا سا ہوش آنے لگا تھا۔ یہ خبر اتنی اچھی تھی کہ ان سے رہا نہیں گیا تھا۔ زاویار کو دیکھنے باری باری سب اندر گئے تھے۔
शहरीन जिस वक्त अंदर आई वो नीम गनूदा था। अभी तक उसने किसी से भी बात की थी ना आंखें खोली थीं। सवी कैसे हो, प्लीज़ आंखें खोलो। उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लेते हुए शहरीन बेइख्तियार रो पड़ी। अभी कल ही तो वो मामा से कह रही थी कि कितना मुस्टंडा होता जा रहा है, 80 किलो से कम वज़न नहीं है उसका, और आज उसे इस हालत में देखकर वो अपने आंसुओं पर इख्तियार नहीं रख सकी थी। जावियर ने नकाहत से आंखें खोलीं तो सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द महसूस हुआ, लिहाजा दोबारा तकलीफ के बाइस आंखें बंद कर लीं। ताहम शहरीन के धुंधले चेहरे पर लिखा दुख और बहते आंसू उसकी बसारत ने महफूज कर लिए थे। सभी ये क्या कर लिया तुमने, क्यों ड्राइविंग की ऐसी? आखिर तुम्हें ये याद क्यों नहीं रहता कि बहुत से लोगों की आस बंधी है तुम्हारी सांस से? आसमा मामी, आगा जान, शहरियार मामू, एनी और हम सब मोहब्बत करते हैं तुमसे। तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, हमारी खातिर, हम सब के लिए। शहरीन बहुत जज्बाती हो रही थी। पिछले चंद घंटे बेयकीनी और खदशों में कुछ इस तरह गुजरे थे कि जावियर का यूं बच जाना, मौजज़ा हो जाना, उसके एसाब इस खुशी को सहार नहीं पा रहे थे। आई एम ओके। उसके आंसू अपने हाथ पर गिरते महसूस हुए। जावियर ने तमाम तर ताकत जमा करके बमुश्किल आंखें खोलीं और धीरे से कहा, थैंक्स गॉड। वो बहते आंसुओं समेत एकदम मुस्कुरा दी थी। सभी कम अज़ कम कुछ बोला तो था। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं जभी कि कल की रात कैसे कटी है। तुम्हें कुछ हो जाता तो उफ़ मेरे अल्लाह, कितना भयानक वक्त था वो। शहरीन खुशी के बावजूद कल की रात और उसकी तारीकी को भूल नहीं पा रही थी। झरझरी लेते हुए बोली तो जावियर ने दोबारा आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? जन्नत में। देख नहीं रहे ये हूर सामने खड़ी है। उसे खुद से बात करता पाकर वो खुशी से फूले ना समा रही थी। खुश दिली से बोलते हुए उसने आंखें खुश्क की। ओफो भाई, जाहिर है हॉस्पिटल में हो। जो कारनामा तुमने अंजाम दिया है ना, उसके बाद सितारा जुर्रत यहीं आकर मिलना है। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ज़िंदगी से इस कदर आजिज़ क्यों हो। आखिर ज़रूरत क्या थी तुम्हें मेहरान की बाइक चलाने की? टीन एज से आज तक जब भी तुमने बाइक चलाई है, या तो उसका नुकसान हुआ या तुम्हारा। तुम्हें पता है ना तुम्हारा टेम्परामेंट बाइक ड्राइविंग वाला बिल्कुल नहीं है, मगर फिर भी तुमने। शौकी से बोलते बोलते वो संजीदगी से उसे डांटने लगी थी। जावियर के नकाहत ज़दा चेहरे पर एकदम बेजारी उभरी तो वो गहरी सांस भरकर चुप हो गई। जावियर ने उसे खामोश पाया तो जुम्बिश करने की कोशिश की। मेरे सर में शदीद दर्द है, बल्कि पूरे जिस्म में। मैं अपने हाथ पाँव ठीक से मूव नहीं कर पा रहा। मुझे बताओ क्या हुआ है मुझे? उसकी कमज़ोर आवाज़ में झंझलाहट थी। शहरीन ने होंठ भींचकर उसे देखा। कुछ पूछा है मैंने। वो यकीनन गुस्से में आ गया था, मगर कमज़ोरी के बायस बहुत ज़ोर से नहीं बोल सका था। तुम्हारा परसों रात सवेर एक्सीडेंट हुआ है। तुमको किसी ट्रक ने हिट किया था। बाइक और तुम्हारा सेल दोनों ख़त्म हुए और तुम्हारे हाथ भी फ्रैक्चर है। सर में शदीद चोट आने के बायस तुम्हारा खासा खून बह गया था और तुम पूरे 36 घंटों के बाद होश में आए हो। उसे बताना ही पड़ा था। और मेरे पैर, वो ठीक हैं, अलबत्ता टखने पर शदीद चोट आई है जिसकी वजह से तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, लेकिन तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। आगा जान की डांट खाकर तो अच्छे अच्छों को बेड से उठना पड़ जाता है। वो नरमी से बोली थी। क्या मामा और आगा जान को पता है? नकाहत से सवाल किया। नहीं, अभी मैंने किसी को इतला नहीं दी सिवाय खोला और अजी भाई के। क्या करती कल तुम्हें यहाँ इस हालत में देख कर तो मैं समझी कि तुमने समझा मैं मर गया हूँ। उसने नकाहत भरी आवाज़ में उसका जुमला मुकम्मल किया तो शहरीन ने खफकी से उसे देखा। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये कहना। इधर मेरी जान निकली जा रही थी। क्या जवाब देती मैं मामी को, आगा जान को, और क्या हालत होती शहरियार मामू की। मगर तुम्हें क्या परवाह, तुम बहुत कठोर हो ज़वी। अफसुर्दगी और शिकायत से मुज़य्यन उसका लहजा जावियर को चुप करा गया। शहरीन ने उसे बगौर देखा तो एहसास हुआ कि जावियर अंसारी के चेहरे पर कमज़ोरी और नकाहत के अलावा भी कुछ था। शायद गहरा दुख था, शायद कोई अज़्मा हलाल था, अजीब तरह की अफसुर्दगी थी, या फिर कुछ खो देने का शदीद मलाल। कोई ऐसा रंज और दर्द जो उसकी आंखों की सतह पर सुर्खी बनकर चमक रहा था। तुम ठीक तो हो ना ज़वी? किसी गैर मामूली वाक़या के वकूफ़ पज़ीर होने के खदशे ने लाउबाली सी शहरीन मिर्ज़ा के दिल को छुआ तो वो बेइख्तियार सवाल कर बैठी। मध्यम सी आवाज़ के साथ जावियर ने पलकें मूंद ली थीं। अभी वो मज़ीद कुछ कहना ही चाहती थी कि नर्स ने अंदर आकर उसे ज़बरदस्ती बाहर भेजा। उसका मुकम्मल चेकअप करने के लिए सर्जन और साथी डॉक्टर आईसीयू में दाखिल हुए तो वो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मगर कुछ था जो शहरीन के एहसास को छू गया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसे पता चला कि कल रात शहरीन भी घर आई थी, जो कि सुबह सुबह खौला के साथ दोबारा हॉस्पिटल चली गई है। उसका दिल जैसे लम्हा भर के लिए रुक कर धड़का था। कोई भारी लम्हा था जो उसके दिल पर से गुजरा था। ताहम इजहार साहब की वापसी पर वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी थी।
کیونکہ زاویہ کے ہوش میں آنے کی خبر وہی لائے تھے۔ اس نے اور زارا نے دل ہی دل میں لاکھ شکر ادا کیا۔ زارا کی لاڈلی چھوٹی بہن کی شادی تھی، میکے میں خوشی کا سما تھا، ایسے میں سسرال میں کسی بھی طرح کی ٹینشن وہ فیس کرنے پر قطعاً آمادہ نہ تھیں، جبکہ در مکنون کا دل تو نہ جانے کتنی طرح کے تفکرات کی آماج کا تھا۔ لاؤنج میں ہونے والی گفتگو سے ہی اسے پتہ چلا کہ زاویہ نہ صرف ہوش میں آ چکا ہے بلکہ اب خطرے سے بھی باہر ہے۔ ہاتھ میں فریکچر ہے جو کہ چند دنوں میں بآسانی ٹھیک ہو جائے گا اور سر کے زخم بھی مندمل ہو جائیں گے۔ کاش کہ دل و روح پر لگنے والے زخم بھی اسی آسانی کے ساتھ مندمل ہو سکتے جیسے جسم پر لگے چرکے دواؤں سے ٹھیک ہو جایا کرتے ہیں۔ ریدا کے کمرے کی طرف آتے ہوئے اس نے یاسیت سے سوچا تھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ آئی۔ ریدا کے سسرال والوں کے لیے پسند کیے گئے گفٹ آ چکے تھے اور اب زوہا اور زارا کے ساتھ ریدا کی کچھ سہیلیاں انہیں خوش رنگ چمکیلے ریپر پیپرز میں ملفوف کرنے میں منہمک تھیں۔ میمی کے کہنے پر وہ وہاں چلی آئی تھی۔ کمرے کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ ریدا کی سہیلیاں بہت خوش تھیں۔ زمانی مذاق اور چٹکلوں کے درمیان کام بھی تیزی سے کیا جا رہا تھا۔ کچھ دل پر سے ہٹنے والے بوجھ اور کچھ شادی کے گھر کے بہت خوشگوار ماحول نے اس پر خاصا اچھا اثر ڈالا تھا۔ کتنی ہی بار نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ گئی تھی۔ زوہا اور ریدا نے اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا تو جھینپ سی گئی۔ دیٹس لائک مائی سسٹر، ایسے ہی ہنسا کرو، خوش رہا کرو گڑیا۔ سچ اتنی خوشی تو مجھے ریدا کی شادی کی نہیں ہوئی جتنی تمہیں ایسے مسکراتا دیکھ کر محسوس کر رہی ہوں۔ زوہا نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے خود سے لگایا تو وہ متشکر سی مسکرا دی۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا اسے میں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ آپ قاتل ہیں میرے اور اپنے قاتل کو میں محسن کا درجہ کبھی نہیں دوں گی۔ آپ لمحہ لمحہ جلے ہیں نا دوزخ میں، تو اب یاد رکھیے یہی دوزخ آپ کا مسکن ہے اور آپ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ میں آپ کو ضمیر کی اس خلش سے، اس گلٹ سے کبھی آزاد نہیں ہونے دوں گی جو آپ کو آپ کا ظلم یاد دلاتا رہے گا۔ میرے بابا اور میری ماما کے قاتل کو میں بھلا کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ سو پلیز لیو می الون۔ چلے جائیں، میری اس موت سے بدتر زندگی سے نکل جائیں۔ سانس لینے دیں مجھے بھی۔ پلیز اتنا ظلم نہ کریں کہ میری ہر سانس ایک بددعا بن جائے آپ کے لیے۔ جملوں کی بازگشت تھی یا اس کے جسم میں دوڑتے خون کو جلاتی بھڑکاتی آگ جو اسے مسلسل اپنی لپیٹ پہ لیے جا رہی تھی۔ اف، خاموش ہو جاؤ پلیز، خاموش۔ یکدم وہ چلا اٹھا تھا۔ کیا ہوا سر؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا آپ سے۔ میل نرس اس کے زخموں کی پٹی کھولتے کھولتے گھبرا کر بولا تھا۔ زاویہ نے بے اختیار آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے انتہائی تکلیف محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ہوش میں آئے 1 دن ہو چکا تھا مگر شدید درد کے باعث اسے بار بار سکون کا انجیکشن لگا دیا جاتا تھا جس کا اثر اس کے ذہنی انتشار کے باعث وقت سے پہلے ختم ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ اسے اپنے سینے میں ایک ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ در مکنون مجھے معاف کر دو۔ لبوں نے بے آواز جنبش کی اور آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی جسے اپنے اندر اتارنے کی خاطر اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر کمرے کی چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا تھا۔ اس کی زندگی کی طرح وہ بھی بالکل ساکت تھا۔ چلیے آپ کی ڈریسنگ تو مکمل ہوئی، ہوپ فلی آپ جلدی ریکور کریں گے۔ میل نرس خوش مزاج تھا، مسکرا کر بولا۔ زاویہ نے کسی گہری سوچ سے نکل کر اسے دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ ایک تو پیشہ ورانہ مشورے دے کر وہ رخصت ہوا تو زاویہ نے اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائی۔ اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو احساس ہوا کہ دن ڈھل رہا ہے۔ گویا زندگی کے کچھ دن عالم بے ہوشی میں گزر گئے زاویہ انصاری۔ کتنا ہی اچھا ہوتا جو یہ بے ہوشی کچھ دیر اور طاری رہتی، اپنوں کی تکلیف کا احساس کیے بغیر جو وہ سب اس کے حادثے کے سبب اٹھا رہے تھے۔ اس نے قدرے بے حسی سے سوچا۔ ابھی کچھ اور سوچنا چاہتا ہی تھا کہ مولا بخش کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کا ذہن صحیح معنوں میں بیدار ہوا۔ ہاتھوں میں پھلوں کا تھیلا لیے وہ بڑی خوشی اور گرم جوشی سے اس کے پاس چلا آیا تھا۔ کیسے ہو صاحب؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ مولا بخش عقیدت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے بروقت اسپتال پہنچایا۔ کاش کہ نہ پہنچایا ہوتا۔ ارے آپ تو ہمارے مائی باپ ہو، ہم تو احسان مند ہیں آپ کے صاحب۔ اس چمڑی کا جوتا بنا کر بھی آپ کو پہنائیں تو بھی آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ مولا بخش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ پلیز مولا بخش، میں نے کئی بار کہا ہے میرے سامنے اس طرح مت کیا کرو۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے تھکے تھکے لہجے میں ٹوکا تو مولا بخش معافی کا خواستگار ہوا۔ کچھ دیر وہ اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ شہرینہ اور میمونہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ہائے میرا بچہ، یا اللہ کیا ہو گیا اسے؟ میمونہ بیگم تڑپ کر بھتیجے کی طرف بڑھی تھیں۔ زاویہ نے ناراضگی سے سائڈ ٹیبل پر ہارڈ پارٹ رکھتی شہری کی طرف دیکھا
जिसे उसने मैमूना और ख़ास तौर पर आसमा बेगम को इस हादसे की इत्तला देने से मना किया था। मैमूना बेगम ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर लबों से लगा लिया था। वो बहुत मुतासिर हुआ। टेक इट ईजी मम्मा, ये ठीक है अब। शहरी ने उसकी सख्त नज़रों की परवाह ना करते हुए माँ से कहा तो वह यकदम फिर गई। ये तुम्हें ठीक नज़र आ रहा है शहरी? हवासों में तो हो तुम। मेरे बच्चे का इतना सा मुंह निकल आया है। मैमूना बेगम तड़प उठी थी। मौला बख्श इस दौरान कमरे से निकल गया था। कम ऑन मम्मा, एक कर्नल की बीवी और एक मेजर की माँ होते आपको इस तरह हाथ पैर छोड़ देना सूट नहीं करता। लिहाजा खुद भी रिलैक्स रहे और इस ऊद बुलाव को भी समझाएं। 1 घंटे के अंदर अंदर मामी आ रही हैं कोयटा से। अभी तो उन्हें भी संभालना होगा। जूस के डब्बे से ग्लास में जूस उंडेलते हुए वो बोली थी। शहरी, एकदम जावियार ने उसे घूरा था। मैंने मना किया था ना कि तुम मामा को फ़ोन नहीं करोगी। आई एम सॉरी। पिछले 48 घंटों से मैं उन्हें झूठ बोल बोल कर मुतमईन कर रही थी, मगर इससे ज़्यादा जुल्म मैं नहीं कर सकती उन पर। तुम्हें मालूम है वो किस तरह रो रही थी। मेरे किसी झूठ पर उन्हें यकीन नहीं आया था। जावियर के अंदाज पर उसे भी तैश आ गया था। छिंचलाकर बोली और जूस का ग्लास साइड टेबल पर ही पटक दिया। बेटा जवी, शहरी ठीक कह रही है। आसमा माँ है। माँ के दिल में तो गोया ट्रांसमीटर फिट होता है। कोई कहे ना कहे, बताए ना बताए, औलाद की तकलीफ़ पर उसका दिल उसे सिग्नल देता है। ख़तरे का अलार्म उसके अंदर बजता है। अगर अभी भी आसमा को ना बताया जाता तब भी उसने वापसी की टिकट ले ली थी। मैमूना बेगम ने प्यार से जाविया की कुशादा पेशानी को चूमकर कहा तो वह चुप सा रह गया। शहरी इत्मीनान से उसके सामने पड़े सोफे पर जा बैठी थी। बल्कि चंद दिनों में आगा जान और शहरियार मामू को भी फेस करने की तैयारी कर लो। ओह, उसने गहरी सांस भरकर दोनों माँ बेटी को देखा और सर नफ़ी में हिलाकर रह गया। मैमूना बेगम के सामने वो मौजूद था, मगर बार बार हादसे के ख्याल से वो लर्ज जाती थी। कभी उसका माथा चूमती, कभी सदका निकालती, कभी कुछ पढ़कर दम करती। बस करें मम्मा, इस पर इतना कुछ पढ़कर दम करेंगी तो कहीं ये जिनका बच्चा ऐसे गायब ना हो जाए जैसे लाहौल पड़ने से शैतान उड़नछू होता है। फूफी भतीजे के लाड को उसने शरीर नज़रों से देखते हुए कहा तो जावियार ने गहरी नज़र उस पर डाली। जकल उसके होश में आने पर किस तरह खुशी से दीवानी हो रही थी और अब बज़ाहिर खुद को फ्रेश जाहिर करती, छेड़छाड़ करती शहरीन की आंखों में उसे तफक्कुर और गुजरी भारी साहतों का सहम साफ दिखाई दे रहा था। जुमला ही उसने ऐसा कहा था जिस पर माँ से डांट पड़ना यकीनी था। ताहम वो चुपके चुपके हंसते हुए जावियार के लिए सेब काटती रही और माँ की घुरकियाँ भी सुनती रही। अपनी तकलीफ़ और दर्द के साथ साथ जावियार का जहन आसमा बेगम के रद्द-ए-अमल का सोचकर और भी परेशान हुआ जा रहा था। उसे अपने से ज़्यादा उनकी फ़िक्र सता रही थी, और ये फ़िक्र कुछ पेचा नहीं थी। जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुई, जावियार पर नज़र पड़ते ही एक दिलखराश चीख के साथ कटे हुए शहतीर की तरह ज़मीन पर आ रही थी। या अल्लाह! मैमूना और शहरी तड़प कर आगे बढ़ी, मगर उस वक्त तक वो दहलीज में ही गिरकर बेहोश हो चुकी थी। जावियार शदीद कोशिश के बावजूद उठने में नाकाम रहा। जोड़ जोड़ में टीसें उठ रही थी। कमर तक खुद को उठाने के बाद उसकी तमाम तर ताकत गोया ख़त्म हो गई थी। वो खुद पर कोई काबू ना पाते हुए वापस लेट गया था। शहरी और मैमूना ने आसमा बेगम को उठाकर साथ रखे सोफे पर बिठाया और दौड़कर डॉक्टर को बुला लाई। शौक लगा है इन्हें, वैसे ये ठीक हैं, थोड़ी देर में ये होश में आ जाएंगी। डॉक्टर चेक करके इत्मीनान दिलाता चलता बना। यही वजह थी कि मैंने मना किया था तुम्हें। देख रही हो क्या हाल हुआ है इनका। जाविया तलखी से शहरी पर ही उलट पड़ा था। उनके हाल की इस कदर परवाह है तो फिर खुद का ख्याल रखना सीखो जवी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। बहुत से लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी से मुंसलिक हैं, तुम्हें देख देख कर जीते हैं, मगर जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी को केयरलेसली ट्रीट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें इन लोगों की ज़रा सी भी परवाह है। चंद साने उसे संजीदगी से देखती शहरी ने उसकी तवक्को के बरक्स कुछ ऐसे ठहरे हुए मतानत भरे लहजे में कहा कि वह चौंक सा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि ये एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर किया है? मैं खुद को मारना चाहता था क्या? वो जैसे तिल मिला उठा था। गैज़ो गज़ब में उसको घूरा। अब इस सवाल का जवाब तो तुम्हें खुद ही पता होगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम हमेशा से मैदान छोड़कर भागने वालों में से हो। जब भी कुछ अनचाहा हुआ तुमने राह बदली, मगर ये जीने का कोई ढंग नहीं डियर। जीना है तो ज़िंदगी की आंख में आंख डालकर जियो। ज़िंदगी किसी एक मोड़ पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ये तो लम्हा लम्हा कदम ब कदम मंजिल ब मंजिल साथ चलती है जीने वालों के। इधर इत्मीनान का समंदर ठाठे मार रहा था। जावियर अंसारी ने आंखें सुकेड़कर उस नाजुक सी शरीर सी शहरीन मिर्ज़ा को देखा, जो इस वक्त किस कदर बुर्दबार लग रही थी। उसकी आंखों में एक नई सी कैफियत नज़र आ रही थी, जिसे समझना उसके बस में ना था। ये कौन सी नई फिल्म के डायलॉग थे? तंजिया लहजा शऊरी तौर पर अपनाया गया था।
اس فلم کے جو گزرے دنوں میں ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں، ایک شانہ استغنا سے کہتی وہ اس کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ آسمہ بیگم کو ہلکا ہلکا ہوش آنے لگا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں لپک کر ان کے پاس آئی تھیں۔ زاویہ نے بے بسی سے اپنے زخموں سے چور جسم کو دیکھا۔ ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے کتنے لوگ تکلیف میں گر گئے تھے۔ جہاں اتنی محبتوں نے دل میں خوشگوار سا تاثر چھوڑا تھا، وہیں پشیمانی نے بھی اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ رات تک مومن اور مہران بھی دوسری فلائٹ پکڑ کر کراچی چلے آئے تو ان کی محبتوں پر زاویہ اور انصاری کی شرمندگی دگنی ہو گئی تھی۔ عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ دادی زارا کے پاس سے اٹھ کر گئی تو زارا ذہن کو ہلکا محسوس کرنے کے باوجود دل میں آئے ملال کو نظر انداز نہ کر سکی۔ کیا بات ہے، تم کس سوچ میں ہو زارا؟ سائرہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بیٹی کے چہرے پر سوچ کے گہرے بادل چھائے دیکھے تو لامحالہ قریب چلی آئیں۔ وہ اپنے خیال سے باہر آئی، ماں کی طرف دیکھا تو مسکرا دی۔ کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی ابھی دادی سے بات کر رہی تھی۔ خولا کے بارے میں؟ انہوں نے ساتھ بیٹھتے ہوئے دلچسپی کا اظہار کیا۔ جی، تو پھر کیا جواب ملا؟ ریتا کی شادی کی مصروفیت میں ان کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ ساس کے ساتھ بیٹھ کر تسلی سے دو باتیں کر لیتیں، سو لگے ہاتھوں بیٹی سے ہی پوچھ لیا۔ بس دادی نے نہ انکار کیا نہ اقرار۔ میں نے ان سے اکرما کی رائے معلوم کی تھی۔ بقول دادی کے اکرما نے گو کہ سب ان پر چھوڑ رکھا ہے، مگر انہیں ایسا خدشہ ہے کہ شاید وہ خولا کو بحیثیت پارٹنر قبول نہیں کر پا رہا ہے۔ اس نے ایسا کچھ کہا تھا کیا؟ سائرہ بیگم کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ نہیں، مگر اس نے حامی بھی نہیں بھری۔ وہ کھل کر اس ٹاپک پر ان سے بات نہیں کر رہا ہے، اور اس کے اسی رویے سے دادی نے جج کیا ہے کہ شاید اکرما کی یہاں مرضی نہیں ہے۔ گو کہ اس نے انکار بھی نہیں کیا، مگر دادی اس کے مزاج کو سمجھتی ہیں۔ سارا نے قدرے اطمینان سے ساری گفتگو کا حاصل ماں کے سامنے رکھا تو انہوں نے بغور بیٹی کی طرف دیکھا۔ گویا اماں نے ایک طرح سے انکار کر دیا ہے اور تم اس بات پر مطمئن ہو۔ اب اظہار کو کیا جواب دو گی تم؟ بیٹی کا اطمینان ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ جواب میں زارا نے آغا جان کے فیصلے سے ان کو آگاہ کیا تو وہ ناگواری کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکیں۔ تو اس پروپوزل کا خیال انہیں اس وقت کیوں نہیں آیا جب خولا ان کے پاس لاہور میں رہا کرتی تھی؟ ذرا سوچو، اگر ابھی اماں نے ہاں کر دی ہوتی یا اکرما نے اپنا انٹرسٹ خولا میں ڈیولپ کر لیا ہوتا تو کتنی ایمبیرسنگ سچویشن ہو سکتی تھی تمہارے لیے۔ وہی تو میں نے بھی اظہار سے یہی کہا تھا، مگر ان کا تو آپ کو پتہ ہے، آغا جان کو اپنے والد اور دادا کی جگہ مانتے ہیں وہ۔ اوپر سے خولا بھی بھائی کی حامی ہے، وہ کسی بھی قسم کی ٹینشن کو فیس نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب ایسے میں آج جب دادی نے مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں انکار کیا تو خود کو بہت ریلیکس فیل کر رہی ہوں میں۔ در حقیقت کئی دنوں سے اس سوچ نے اسے پریشان کر رکھا تھا کہ شیرازی ولاز میں اس نئی ڈیولپمنٹ کا ذکر کس طرح کرے، مگر اللہ نے اس کی مشکل خود ہی آسان کر دی تھی۔ اظہار تو سب کچھ ان کے کندھے پر ڈال کر مطمئن ہو گئے تھے، مگر فیس تو اس کو ہی کرنا تھا۔ تاہم زارا کو بھی خولا کے اس طرح تاریخ کے لیے مان جانے پر حیرت تھی، جس نے کچھ دن پہلے ہی تو اکرما کے لیے اقرار کیا تھا۔ چلو اچھا ہی ہوا، وداؤٹ ٹینشن ہی یہ سالو ہو گئی پرابلم۔ سائرہ بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا اور گہری سانس بھری۔ بالکل، ویسے بھی آغا جان کراچی آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہی تھینک گاڈ سب کچھ سیٹل ہو گیا۔ زارا خوش تھی۔ اینی وے، اب کس سے رشتہ طے کیا ہے خولا کا؟ کل جس سے آپ ملی ہیں، شہرین، اس کے بھائی سے، آرمی میں میجر ہے، فیملی کا ہے اور سب سے بڑھ کر آغا جان کا حکم ہے۔ اور یہ لڑکی شہرین، یہ کیسی ہے؟ از شی انگیجڈ؟ فی الحال تو نہیں ہے، مگر آغا جان جلد ہی زاویار اور اس کا رشتہ بھی طے کرنے والے ہیں، مگر ابھی اس میں کچھ وقت ہے، پہلے زاویار ٹھیک ہو جائے، غالباً اس کے بعد۔ زاویار؟ یہ نام سائرہ بیگم کو چونکا گیا۔ انہیں خیال آیا کہ در مکنون سے ملاقات کے بعد نازیہ نے انہیں کانٹیکٹ ہی نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ آپ کیا سوچنے لگیں؟ زارا نے ماں کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں فوراً نوٹ کی تھیں۔ کچھ نہیں، سائرہ بیگم کسی خیال سے نکل کر مسکرائی تھیں، تاہم دل ہی دل میں نازیہ کو فون کرنے کا ارادہ باندھا۔ پھر بھی بتائیں تو صحیح۔ زارا کو ماں کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آیا تھا، وہ ان کے سر ہو گئی، مگر سائرہ بیگم نے اس وقت اس موضوع کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی انہیں نازیہ اور زاویار کے جواب کا انتظار تھا، اس لیے بیٹی کو ٹالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زاویہ کا پرپوزل، اس کے سامنے در مکنون کا بے ہوش ہو جانا اور اکیلے میں ان دونوں کی ملاقات کا انہوں نے بیٹیوں سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اوفو بھائی، یہ ذرا لمبی کہانی ہے، تمہیں فرصت سے سناؤں گی، فی الحال تو تم اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میری کلب ممبرز کے کارڈ ابھی بانٹنے باقی ہیں، اکیلے جانے کا موڈ نہیں، میں تمہیں ساتھ لے جانے ہی آئی تھی کہ باتوں میں لگ گئی۔ ہاتھ پکڑ کر زارا کو اٹھایا اور پھر اس کے اصرار کے باوجود انہوں نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی،
اور ادھر دروازے کے اس طرف دستک دینے کے انتظار میں کھڑی در مکنون کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ شہرین اور زاویہ انصاری، کیا میرے اللہ، کیسا انکشاف تھا یہ! ساتھ بنی اسٹڈی میں آ کر بیٹھتے ہی اس نے اپنا سر ہاتھوں پر گرا لیا تھا۔ شہری آپی اور زاویہ انصاری، اس نے چشم تصور سے ان دونوں کو دیکھا اور گہری سانس بھری۔ تو گویا زاویہ انصاری نے فیصلہ بدل لیا، وہ بھی اتنی جلد۔ کسی ملال یا رنج کا شائبہ نہیں تھا دل میں، مگر پھر بھی اسے کسی بات سے دھچکا لگا تھا۔ شاید شہرین جیسی پیاری لڑکی کا نصیب زاویہ انصاری سے جڑتا اسے دکھ دے گیا تھا، یا پھر زاویہ کا اسے زندگی بھر کا عذاب دے کر خوبصورت زندگی کے خواب خرید لینا افسردہ کر گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، بہرحال اسے تکلیف پہنچی تھی۔ کمال ہے در مکنون زاہد علی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کم از کم تمہاری تو جان خلاصی ہوئی اس بے حس انسان سے جس پر تمہارا قرض ہے، کوئی اس کے اندر بڑی ایمانداری سے بولا تھا۔ ہاں، میں خوش ہوں اپنے لیے، مگر شہری آپی، اف اللہ، یہ کیسی خوشخبری ہے جو میرا دل جلائے جا رہی ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہتے کہتے اپنے رب سے مخاطب ہو گئی تھی، اور پھر شہرین کے لیے دل سے دعا کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے بہہ نکلنے والا گرم سیال اس کے دوپٹے میں جذب ہوتا چلا گیا۔